क्वेश्चन कर रहे हैं दोनों देशों की तरफ से, तो ये भी है कि कल के दिन में बहुत सारे लोग जो वीजा अप्लाई कर रहे हैं उनका प्राइस नहीं, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है। आप क्या वो डर रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट के एक्शन से? नहीं, उनका डर ये है कि वो कनाडा में जो लोग हैं वहाँ पर उनकी सिक्योरिटी को लेकर या उनके जॉब को लेकर या उनके स्टडी को लेकर जो कंसर्न है उसको किस तरह से भारत सरकार समझ गया जी। या गो अहेड। I'm Sahil from ENI. Since there are multiple threats to our High Commission and consulates in Canada, is Government of India planning to send its own security as well in that case? Okay. Yeah, go ahead. I gave you the floor that time, but you weren't ready. Sir, Shruti from Bloomberg. Sir, can you confirm whether Canada shared any evidence, with us on this particular before making this allegation in the Parliament, and also whether India or how many times India has shared its concerns and evidence on Niger with Canada, and what was their response to it? And an associated question. What is the second part? I mean, did India share evidence on Niger and the other suspected Khalistani, The second question, okay. Can we hold on? We'll come back to more. Okay. Can we wait another one? I've got a whole list, but... And are we going to join the investigation? Let's see. I'll come back to you. Why did I take yours? Yes, go ahead. Yeah, you. Yeah. Hi sir, Rajesh here from the Wall Street Journal. Wanted to ask a question. Just a second. Not ready? Beyond issuing robust denials, what is India's strategy on countering the allegation which carries a risk of reputational harm to India's global standing? Okay, fair enough. If it's just on this, otherwise I still see many hands. Maybe one more round? Yeah. So, Meghna from DD News. Is ME considering any specific advisory for the Hindu Canadians? Because we have seen an advisory for Indian nationals and students, but anything specific in view of the threats that have emerged? Okay. Maybe I will hold off. I think I just see too many hands around. Okay. Let me start with some of the... Rishabh, your query was on diplomats, Canadian diplomats here. Yes, we have informed the Canadian government that there should be parity in strength and rank equivalence in our diplomatic presence, in mutual diplomatic presence. Their numbers here are very much higher than ours in Canada. The details of this are being worked out, but I assume there will be a reduction from the Canadian side. There was a query, I think you mentioned, let me take it in a different order. Siddhant, you had a comment on words used by Canadian Prime Minister, Foreign Minister, and then the US Ambassador, right? Yes, I do think there is a degree of prejudice here, They have made the allegations, they have taken action on them. To us, it seems or it appears that these allegations by the Government of Canada are primarily politically driven. Manush, your query was on briefing our partners, etc. Look, on this one, as I said, we have been, of course, engaged with our partners on various issues, particularly including this one. We have been discussing with them. We have conveyed our position, how we see these developments, and I think those are part of ongoing conversations, but I'm happy to share a little more if you wish to talk about it. I'll come back to that. This is what I'll mention. Manish, I'll come back to Manish because let me just make a couple of other points. I think, Sudhi, you had a query about Canada sharing any information. No, let me clarify. No specific information has been shared by Canada on this case, either then or before or after. We have, as we have said, or I think we've been made very clear, we are willing to look at any specific information. We have conveyed this to the Canadian side, made it clear to them that we are willing to look at any specific information that is provided to us. But so far, we have not received any such specific information. There was an indirect question on that. Let me also point out that from our side, very specific evidence about criminal activities by individuals based on Canadian soil has been shared with the Canadian authorities on a regular basis, but not been acted upon. So that is answer to both sides of it, I think you asked. There was a query on, I'll come back. There was a query regarding from, I think,
मनीष झा, आपका प्रश्न था सिक्योरिटी पे। देखिए सिक्योरिटी के मामले पे आपने पूछा था हमारे, हाँ देखिए हमने सीधे एडवाइजरी इशू की है और डिटेल एडवाइजरी है उनको क्या करना चाहिए। एक प्रश्न और था कि कुछ ग्रुप्स या हिंदू अलग से, नहीं एडवाइजरी सारे इंडियन नेशनल्स के लिए, हम इस तरह से नहीं देखते। इंडियन नेशनल्स के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, जो ट्रैवल कर रहे हैं, जो वहाँ रह रहे हैं, उनके सबके लिए एडवाइजरी है एंड हम चाहेंगे कि वो उस एडवाइजरी को देखें और पालन करें उसका। Sahil, your query was on whether we are sending security. No, look, we have always believed that it is the host government's responsibility to provide security. If there is some places we have our own security posture also, but look, I don't want to discuss security measures in public. That's not an appropriate situation. If I could come back to what Manesh you asked about, as I said, we have ongoing conversations with friends and partners. We have made our position quite clear to them on the lines that I've outlined just now. That's why I thought I'll outline our position first, that there has been no specific information and we're willing to look at that if provided. On the issue of a threat, Vinita, you mentioned for various things. Look, I don't know how to react to this. We obviously condemn any threat. But look, overall, I think we should look at the larger issue. The larger issues of terrorism. And not just, terrorism, but also the fact that it is... आरोप लगाए वो राजनीति से प्रेरित। आप सुन रहे हैं किस तरीके से वो जवाब भी दे रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि वहां पर जो कनाडा से आने वाले लोग थे उनके आने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, अगली सूचना तक। वीजा सेवाएं निलंबित रहेंगी, इसको लेकर जानकारी लगातार साझा की जा रही है। देखिए मेरे वरिष्ठ साथी आशीष कुमार सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा अभिषेक उपाध्याय भी मेरे साथ जुड़े हैं और जितेंद्र ओझा भी हैं, जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट हैं। सर आपका भी रुख करूंगी, विवेक काटजू साहब है, पूर्व राजनयिक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले आशीष आप ही का मैं रुख कर रही हूँ। अभी विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप सुन रहे थे और वो दर्शकों ने भी सुना, साफ तौर से कहा गया कि जो आरोप लगाए गए वो निराधार और राजनीति से प्रेरित रहे हैं कनाडा की तरफ से। बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि ये भारत का ये कह देना आधिकारिक फोरम पर, इतने हाई फोरम पर, और एडिशनल सेक्रेटरी खुद बैठ करके बोल रहे हैं कि दीज आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड एलिगेशंस। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि कनाडा को अब ये स्पष्ट संदेश जा रहा है कि भारत को भली भांति पता है कि आखिर वो इस तरह के बेसलेस एलिगेशन क्यों लगा रहे हैं। दूसरा बड़ा टेक अवे मुझे लगता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि अरिंदम बागची ने अपनी तरफ से कहा है, वो ये कहा है कि अभी तक ये जो आरोप लगाए हैं दीपा, उसको लेकर के या तो आरोप लगाने से पहले या पार्लियामेंट में बोलने के बाद कनाडा ने अपनी तरफ से कोई भी साक्ष्य, कोई भी सबूत भारत के साथ शेयर नहीं किए। तो उन्होंने कनाडा को इस आधार पर भी एक्सपोज करके रख दिया है कि सिर्फ बेसलेस एलिगेशन लगाए जा रहे हैं और उसका आधार कोई नहीं है, ना ही भारत के साथ कोई एविडेंस शेयर किया गया है। बिल्कुल ठीक है अभिषेक। अब हालांकि बार बार जस्टिन ट्रूडो ने जो बात संसद में कही थी, अपने संसद में जो बात कही, जो निराधार आरोप लगाए, उसके बाद हालांकि वो लगातार डैमेज कंट्रोल की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब लग रहा है कि पानी सिर से ऊपर बहुत बह चुका है। बिल्कुल, देखिए अभी जिस बात का आशीष जिक्र कर रहे थे, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अभी तक कोई भी तथ्य सामने नहीं आए हैं कनाडा प्रशासन की ओर से कि आखिरकार जो वो कह रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो ने जो बात कही है उसके फैक्ट क्या हैं। और ये बात अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा कि भारत की ओर से जो प्रवक्ता हैं विदेश मंत्रालय के, उन्होंने ये बात उठाई, लेकिन ये बात खुद कनाडा में उठाई जा रही है। वहाँ के जो विपक्षी पार्टी है, कंजर्वेटिव जो हैं, टोरी जिन्हें कहते हैं, उनके जो नेता हैं पीरे, वो ये सवाल उठा रहे हैं कि आप तथ्य तो दीजिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये कहना कि भारतीय एजेंटों ने हत्या करवाई, लेकिन उसके फैक्ट तो दीजिए। कोई चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, कोई अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, आखिर किस आधार पर? और ये सवाल वहाँ पर वहाँ की प्रेस में भी पूछा जा रहा है, लगातार रिपोर्टिंग इस बात की हो रही है। तो ये सारी चीजें हैं कि फैक्ट के आधार पर वो कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात ये जो अभी आपने कहा कि उनके सुर नरम पड़ रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। अब वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम ये नहीं चाहते कि इसको और एस्केलेट किया जाए, उसकी वजह है कि वो सारे ऑप्शन ये बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। ये कनाडा के लोगों को भी समझ में आ रहा है कि निराधार आरोप तो आप लगा रहे हैं, ऊपर से संबंध भी खराब हो रहे हैं। अभी तक इतना अच्छा दोस्ताना चल रहा था, कितने अच्छे मित्र कनाडा और भारत रहे हैं, ये हमेशा सामने आता रहा है, दिखा भी है। लेकिन अब अपने जो पाले हुए खालिस्तानी आतंकी, उनके चक्कर में अपने रिश्ते खराब भारत से आखिर क्यों कर रहे हैं जस्टिन ट्रूडो? ये जल्दी से आपको समझा देते हैं। पहली वजह हिंदू मंदिरों पर हमला, वहां पर
लगातार कनाडा से रिश्ते क्यों खराब हुए? दूसरी वजह भारतीय दूतावास पर हमले लगातार किए गए। तीसरी वजह खालिस्तान रेफरेंडम का समर्थन वहां पर किया गया, जिसके बाद लगातार रिश्ते खराब होते चले गए। चौथी वजह किसान आंदोलन को लेकर बयानबाजी की गई, इस पर समर्थन किया गया। पांचवी वजह है निज्जर की हत्या का भारत पर संसद से आरोप लगाया जस्टिन ट्रूडो ने, जिसके बाद लगातार जो रिश्ते हैं वो बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और फिलहाल कोई रिश्तों के ठीक होने की उम्मीद भी दिखाई नहीं दे रही है। जितेंद्र ओझा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। जितेंद्र जी, जो किया जस्टिन ट्रूडो ने अपने शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए, अब इससे होता ये दिख रहा है कि भारत और कनाडा के रिश्ते खराब और हो सकते हैं आने वाले वक्त में। देखिए, बहुत 250 साल पहले एक अंग्रेजी के कवि होते थे सैमुअल जॉनसन, तो उन्होंने कहा था कि पेट्रियोटिज्म इज द लास्ट रिसॉर्ट ऑफ अ स्काउंड्रल। अब स्थिति इनकी यह है कि 63% से अधिक इनके लोग जो हैं अप्रूवल वोटिंग इनके खिलाफ है। लोग नहीं चाहते हैं कि ये जाएं। गवर्नेंस में बहुत तरीके से ये फेल हो चुके हैं। एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है और ये इस तरीके पे आ गए हैं कि किस तरीके से राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाएं, भारत के साथ कॉन्फ्रंटेशन बढ़ाएं, जबकि जरूरत इस बात की है कि अपने डोमेस्टिक गवर्नेंस के इश्यूज को देखें, खास करके सिक्योरिटी के इश्यूज को। पूरी दुनिया को मालूम है कि जो सिख यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं, उनका भारत के अंदरूनी मामले में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उनको इतनी डिप्लोमेटिक कर्टसी दिखानी चाहिए थी। दूसरी बात जो ये है कि जो ये खालिस्तानी मूवमेंट है, सारे लोगों को पता है कि ये पाकिस्तानी ISI के द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। इससे ऑर्गेनाइज क्राइम बढ़ रहा है। बिना ऑर्गेनाइज क्राइम के ये खालिस्तानी मूवमेंट जा ही नहीं सकता था, सस्टेन कर ही नहीं सकता था। तो इनको इंटरनल सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए थी, ऑर्गेनाइज क्राइम पे इनको हमला बोलना चाहिए था। ये पूरी तरीके से कनाडा की डेमोक्रेसी को सबवर्ट कर रहे हैं संबंधों के साथ साथ। तो इस वजह से हमें कनाडा से इनको अलग करके देखना चाहिए। कनाडा के प्रति हमारी बहुत गुडविल है, लेकिन जस्टिन ट्रूडो के इस रवैये से और उनके ओवरऑल कंडक्ट से कनाडा में डेमोक्रेसी को बहुत खतरा आ गया है और साथ में ऑर्गेनाइज क्राइम और जो फेक अथॉरिटीज है उनको बढ़ावा मिलेगा। इसलिए दुनिया के तमाम डेमोक्रेसी को एक आकर उनके खिलाफ बोलने की जरूरत है। जो गैंग वॉर आपकी कंट्री में हो रहा है, आपकी सरजमी पर हो रहा है, उस पर आप लगाम नहीं लगा पा रहे और निराधार आरोप भारत पर लगाते हैं, जिसके बाद जो संबंधों की बात आप कर रहे थे वो संबंध लगातार बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभिषेक, आशीष और विवेक आरजू साहब भी लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र जी, आप भी लगातार बने रहे। देखिए, तनाव के बीच एक और खालिस्तानी की हत्या हुई है कनाडा में। ये बड़ी जानकारी आप जान लीजिए। हमारे साथ लगातार मेहमान भी बने हुए, मेरे दोस्त साथी भी लगातार बने। बड़ी खबर यह है कि तनाव के बीच में एक और खालिस्तानी की हत्या कनाडा में। आतंकी निज्जर की तरह सुक्खा भी मारा गया है। एक कैटेगरी के गैंगस्टर पर 10 लाख का इनाम रखा गया था। 2017 से कनाडा में रह रहा था गैंगस्टर सुक्खा और फर्जी दस्तावेज को बना करके वो कनाडा भागा, ये उस पर आरोप भी था। सुक्खा की हत्या के से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको दे दें। गोल्डी बराड़ ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली। गैंगस्टर सुक्खा के मर्डर की जिम्मेदारी ली गई है। जिस तरीके से निज्जर की हत्या, उसी तरीके से सुक्खा की भी हत्या की गई है। देखिए, लगातार किस तरीके से हत्या और जो कनाडा से खराब रिश्ते हो रहे हैं इंडिया के, इसके पीछे के चेहरे कौन कौन से जिम्मेदार हैं, जान लीजिए आप। गुरपतवंत सिंह पन्नू है, 2020 में भारत ने आतंकी इसको घोषित किया था। हरदीप सिंह निज्जर है, जून 2023 में मारा गया खालिस्तानी नेता, 2020 में भारत ने इसको आतंकी घोषित किया। जगमीत सिंह है, ट्रूडो सरकार में सहभागी खालिस्तानी समर्थक है और इन्हीं चेहरों की वजह से लगातार भारत से रिश्ते खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अनीस फारूकी मेरे जुड़ चुके हैं मेरे साथ, कनाडा से वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनीस फारूकी जी, जरा बताइए, पहले निज्जर की जिस तरीके से हत्या की जाती है, ठीक उसी तरीके से सुक्खा को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके बाद किस तरीके से आप हलचल वहां पर देख पा रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया। देखें, यहाँ इस वक्त जो ये खास तौर पे अभी जो सुक्खा का हुआ है, तो ये अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा कि जून 2023 से अब जाकर सितंबर में कैनेडियन सरकार ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को लोगों तक बताया कि अब ये इसमें शायद भारत के एजेंट या उनके लिंक्स मिलते हैं। इसमें मैं सिर्फ ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो साहब जो हैं, वो वैसे भी पॉलिटिकली थोड़े से कमज़ोर होते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन या RCMP की जो हमारी इन्वेस्टिगेशन होती है, वो बेसिकली इट्स नॉट पॉलिटिकली मोटिवेटेड। उसमें पॉलिटिकल कोई शामिल हो नहीं सकता प्रेशर, क्योंकि अभी तक जस्टिन ट्रूडो ने सिर्फ ज़बानी असेंबली में जाके एक स्टेटमेंट दिया है। ना तो हमें जर्नलिस्ट बरादरी को उन्होंने कुछ कहा है, ना ही अपोजिशन पार्टी के लीडर पियर पॉलिवर ने भी ये बयान दिया है कि मुझे तो कुछ पता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैंने भी असेंबली में सुना कि मुझे किसी प्राइवेट रूम में बुला के ये इन्होंने साबित नहीं किया। तो मैं ही समझता हूँ कि ये एक हो सकता है
प्रधानमंत्री की जिंदगी का एक बहुत बड़ा जुआ हो, जो कि उन्होंने अपनी डूबती हुई कश्ती को बचाने के लिए एक पॉलिटिकल खेल खेला है, लेकिन कनाडा में ऐसा नॉर्म नहीं है। बड़ा सवाल अनीश जी ये है कि कश्ती जो बचाने के लिए उन्होंने ये बयान दिया, वो कश्ती बचेगी या फिर पूरी तरीके से डूब जाएगी, इस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। आप रहे हमारे साथ, विवेक आरजू भी लगातार बने हुए। क्या ट्रूडो की मजबूरी है खालिस्तानी, इसी पर लगातार हम बात कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं खालिस्तान से प्यार क्यों करते हैं ट्रूडो और उनके प्यार करने की वजह क्या है, इसी पर चर्चा हम कर रहे हैं। आगे भी आपको डिटेल्स देंगे, लेकिन हमारे खास मेहमान लगातार बने हुए हैं और मेरे दो साथी अभिषेक और आशीष भी लगातार बने हुए हैं। देखिए, खालिस्तान से प्यार की वजह क्या है, ये समझिए आप, क्या वजह है जो लगातार खालिस्तानियों का समर्थन करते रहते हैं जस्टिन ट्रूडो। देखिए, लिबरल कनाडा की संसद में कुल 338 सीटें, पहले ये आप जान लीजिए, बहुमत का आंकड़ा 170 का है। और इसके साथ ही देखिए, लिबरल पार्टी, ट्रूडो की पार्टी जो है, 157 सीटें उसकी है, कंजर्वेटिव्स की 121 सीटें हैं, एनडीपी यानी कि जगमीत सिंह जो कि खालिस्तानी समर्थक है, 24 सीटें उनके पास हैं और अन्य के पास 36 सीटें हैं। क्यों मजबूरी हो जाती है ये समझिए आप। लिबरल पार्टी, ट्रूडो की पार्टी 157 प्लस एनडीपी, जगमीत सिंह की पार्टी 24, कुल मिलाकर यह आंकड़ा हो जाता है 181 का। देखिए, इससे ये समझ में आता है कि राजनीतिक लाभ के लिए क्या इस तरीके से बयानबाजी ट्रूडो कर रहे हैं। विवेक आरजू साहब लगातार बने हुए हैं, पूर्व राजनयिक हैं। अब विवेक आरजू साहब, आपको क्या लगता है जिस तरीके से लगातार वो बयानबाजी कर रहे हैं, खालिस्तानियों का और आतंकियों का अड्डा बनता जा रहा है कनाडा, इसके पीछे की वजह और चुप रहने की वजह? देखिए, पहले निज्जर की हत्या हो जाती है, उसके बाद सुक्खा की हत्या हो जाती है, सत्ता आपसे संभल नहीं रही है, आप आरोप लगा रहे हैं भारत पर। काजू सर, अब आप बहुत देर के बाद मेरे पास आई हैं, तो मुझे 2 मिनट बोलने की इजाजत दीजिएगा। पहली चीज, आज से नहीं, 35 साल 40 साल से खालिस्तानियों का कनाडा अड्डा बना हुआ, इसमें बिल्कुल शक नहीं। दूसरी चीज, मुझे कनाडा की अंदरूनी राजनीति से कुछ लेना देना नहीं, वो उनकी बात है। ट्रूडो ने जो इल्जाम लगाया है वो बहैसियत कनाडा के प्रधानमंत्री के लगाया है, यानी कनाडा ने लगाया है, कनाडा देश ने लगाया है, क्योंकि कनाडा का प्रधानमंत्री उस देश का सबसे बड़ा प्रतिनिधि। वो इल्जाम सरासर गलत है और हमने उस पर रोशी नहीं, हमने कदम भी उठाए हैं उसके खिलाफ। तीसरी बात, हत्या का मामला कानूनी मामला होता है, पुलिस की जांच का मामला होता है। हत्या के मामले में मेरे याददाश्त में कभी भी प्रधानमंत्री ने संसद में बयान देना उचित नहीं समझा। ये तो एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात होती है। और आज मुझे लगता है अरिंदम बागची, जो हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात की वो ये कि अभी तक हमें कोई सबूत नहीं दिया है, हमें कुछ स्पेसिफिक चार्ज हमारे पास नहीं है, कोई स्पेसिफिक दस्तावेज हमें नहीं दिया। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमें कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आप देंगे तो उस पर हम गौर करेंगे। कनाडा के साथी देश जो हैं, और इस पर हमें ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, वो हमसे भी अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन कनाडा के एलाइज हैं, उन्होंने भी हमसे यही कहा। हमारा जो स्टैंड है बिल्कुल उचित है कि अगर हत्या का मामला है और हम एक जिम्मेदार देश हैं, हमारी अंतर्राष्ट्रीय पहचान है जिम्मेदार देश की, तो अगर हमें कनाडा की पुलिस, हमारी पुलिस से हमारी जो कितना सही लगता है जो लगातार वहां से बयानबाजी भी की गई, निराधार आरोप लगाए गए, उस बीच मुझे लगता है कि वीजा का मामला जो है वो अभी टेम्पररी रोका है। और अब बागची जी ने ये कहा है कि कुछ कारण है जिसकी वजह से रोका गया, ये ठीक है। लेकिन सवाल ये है
कि ये कहां तक हम सस्टेन बिल्कुल कर ठीक है पाएंगे। सर। एक बात पहले कहने अगर दीजिए, निज्जर की आप ही कह रहे हैं सर, क्योंकि ठीक है सर, आप ही कह रहे हैं कि निज्जर की हत्या हुई है, पहले जांच हो जाने दीजिए। सुक्खा की हत्या हुई है, जांच हो जाने दीजिए। आपके पास सबूत है तो बताइए, सबूत नहीं है तो कम से कम चुप रहिए, निराधार आरोप ना लगाए। ठीक है सर, आप रहे हमारे साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर है, कनाडा के मुद्दे पर भारत बेहद गंभीर। गृह मंत्री से मिले अकाली दल के सांसद सुखबीर सिंह ने तनाव जल्द खत्म करने को कहा है। पंजाब से बड़ी संख्या में लोग कनाडा में रहते हैं। सुखबीर सिंह ने कहा कि पंजाब की छवि को धूमिल करने की कोशिश हो रही है। कनाडा के मुद्दे पर भारत बेहद गंभीर है, लगातार पाबंदियां भी लगाई जा रही हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सुखबीर बादल साहब। सर, गृह मंत्री से मुलाकात हुई है, किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? हमने यही रिक्वेस्ट की है कि जो कनाडा और इंडिया के बीच में बात हुआ है ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और अब क्योंकि अब वीज़ा बंद हो गए हैं, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है पंजाब में और कई देश के अलग अलग सूबों में, क्योंकि लाखों लोग देश के कनाडा में रह रहे हैं और उनके रिश्तेदार यहाँ रह रहे हैं, बच्चे वहाँ पढ़ने जा रहे हैं, कोई वहाँ से आ रहा है। सो अगर वीज़ा बंद हो गया तो देखो, इंडिया के बाद कनाडा ऐसा देश है सबसे ज़्यादा देशवासी वहाँ रहते हैं। सो कीपिंग इन दैट इन माइंड वी नीड टू सेटल दिस इशू फास्ट। तो सुखबीर सिंह बादल को आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये इस पर जो है स्थिति साफ होने की आवश्यकता है। अभिषेक हमारे साथ लगातार बने। अभिषेक, जो चिंता व्यक्त कर रहे थे सुखबीर सिंह बादल तनाव को लेकर, वो जायज़ भी है। वो कह रहे हैं कि जो स्थिति बनी है, जो असमंजस की स्थिति है या फिर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उस पर अब देखिए आगे बढ़ करके और पिक्चर साफ करने की आवश्यकता है। देखिए, उनकी चिंताएं इसलिए भी जायज़ हो जाती हैं क्योंकि पंजाब का एक मामले यूँ समझ सकते हैं, पंजाब एक बड़ा स्टेक होल्डर्स है। पंजाब के मैक्सिमम जो वहाँ के चाहे विद्यार्थी हों, पढ़ने के लिए गए हों या वर्क परमिट के लिए गए हों, पंजाब की संख्या बहुत ज़्यादा है। आप यूँ समझिए, जो टोटल वहाँ पर फोर्स है, जो विद्यार्थी आ रहे हैं, उसमें से 40% हिस्सा भारतीयों का और उसमें भी मैक्सिमम पंजाब का है। इसलिए, और दूसरी एक अहम बात ये भी है, देखिए चिंता की वजह ये भी कि अभी 16 सितंबर को एक हेट क्राइम वहाँ पर हो चुका है। वैंकूवर में ये हुआ है कि एक बस स्टॉप पर वहाँ पर एक भारतीय विद्यार्थी के साथ में मारपीट हुई है। तो इसका कहीं ना कहीं असर भी दिखने लगा है। हालांकि भारतीय दूतावास की ओर से कहा जा रहा है कि वो मदद पोर्टल पर तुरंत रजिस्टर करें सारे वहां के भारतीय विद्यार्थी, भारतीय नागरिक जो वहां पर रह रहे हैं, ताकि किसी भी इमरजेंसी में उनसे संपर्क किया जा सके। लेकिन चिंताएं पंजाब, डायरेक्ट तौर पर पंजाब इससे प्रभावित होता है। बहुत सारे वहां से लाखों बच्चे हैं, उनके परिवार वाले हैं, इसीलिए चिंताएं इस लेवल पर व्यक्त की जा रही हैं। जी बिल्कुल ठीक है। आशीष का रुख कर लेते हैं, आशीष के पास भी चलूंगी, लेकिन उससे पहले कुछ डिटेल्स हैं वो जरा एक बार जल्दी से बता दें। अभिषेक के कह रहे हैं कि चिंता इसलिए भी हो जाती है, बड़ी संख्या में पंजाब के लोग कनाडा में रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर भी बहुत गंभीर यहाँ की सरकार को होने की आवश्यकता। उन्होंने कहा दिसंबर 2018 में खालिस्तानियों के खास ट्रूडो क्यों है। देखिए आप, कनाडा सरकार का आतंकी खतरे पर सार्वजनिक रिपोर्ट सामने आती है कनाडा सरकार का, और सिख चरमपंथ और खालिस्तान का जिक्र उसमें किया जाता है। रिपोर्ट में क्या था ये आपको बता रहे हैं। सिख चरमपंथ और खालिस्तान का जिक्र उस रिपोर्ट में किया गया था, और इसके बाद क्या हुआ कि ट्रूडो की सरकार के विरोध में सिख समुदाय वहां पर उतर करके सामने आ गया। ट्रूडो सरकार में 16 सिख सांसद थे, 4 मंत्रिमंडल में शामिल। देखिए 2018 में ये सरकार की स्थिति वहां पर थी। ट्रूडो सरकार में 16 सिख सांसद थे, 4 मंत्रिमंडल में शामिल थे। ये वहां पर 2018 की स्थिति थी, और अप्रैल 2019 में नई रिपोर्ट में सिख उग्रवाद और खालिस्तान का जिक्र वहां गायब हो गया। देखिए आप, ये परिवर्तन 2018 से आते आते 2019 में, अप्रैल 2019 में राजनीतिक दबाव में फैसला लेने का ट्रूडो सरकार पर आरोप वहां पर लगाया गया। आरोप साफ तौर से ट्रूडो की सरकार पर लगा कि राजनीतिक दबाव में फैसला लिया गया। और मार्च 2022 में ट्रूडो की लिबरल पार्टी ने एनडीपी से हाथ वहां पर मिला लिया, और ये पार्टी किसकी है? जगमीत सिंह की पार्टी है, जो खालिस्तानी समर्थक है। इसके बाद देखिए मार्च 2022 में ही जगमीत सिंह के नेतृत्व वाली न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ वो दिखाई दिए, और जितेंद्र ओझा जी लगातार बने हुए। और जितेंद्र जी देखिए, साफ तौर से जो डिटेल्स भी हमने साझा की दर्शकों के साथ, उससे भी दिखाई यही देता है कि पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए, चूंकि चुनाव है, इस तरीके से बयानबाजी जस्टिन ट्रूडो कर रहे हैं, ये साफ तौर से दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, ये बात तो है ही है, और दूसरे वो जगमीत सिंह के और दूसरे लोगों के दबाव में है। लेकिन तीसरी जो सबसे बड़ी चिंता की बात है कि किस तरीके से चीन का वर्चस्व बढ़ रहा है परोक्ष रूप से, जिसका डिप्लोमेसी से कोई लेना देना नहीं, जो कहीं पे नजर नहीं आता है। एक और बात कि कनाडा सबसे सीरीन डेमोक्रेसी होती थी, रूल ऑफ लॉ के मामले में, सुरक्षा के मामले में कनाडा अमेरिका से भी कई कदम आगे हुआ करता था। कनाडा की चिंता की तुलना कई दफे हम लोग स्कैंडिनेवियन कंट्री से करते थे, लेकिन वहां पे जिस किसी वजह से जो कुछ भी हो रहा है,
हमारे ही लोगों के लिए नहीं बल्कि वहां के नागरिकों के लिए भी जस्टिन ट्रूडो के बिहेवियर से, कंडक्ट से या जो तरीका है उस तरीके से वहां के लोगों की सुरक्षा पर असर पड़ रहा है। और दूसरा मैं कहूंगा कि जो ओपन सोसाइटीज पे असॉल्ट हो रहा है कि वहीं के लोगों को इस्तेमाल करके, वहां के एक पॉलिटिकल एलीट को इस्तेमाल करके ओपन सोसाइटीज को डिसमेंटल किया जाना, वो चिंता की बात है। जैसे काजू साहब बता रहे थे कि किस तरीके से एक भी सबूत नहीं आया, आपने अभी तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ही नहीं किया। आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती, इन्वेस्टिगेशन में कुछ स्पेसिफिक लिंक आता, कुछ बात होती तो आप कह सकते थे। कहीं कोई हमारे डिप्लोमेट की कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, वो ओटावा में रहते हैं और वो कई तरीके से आप देखें कि किस तरीके से झगड़े हो रहे हैं खालिस्तानियों के बीच में। उनके पास हथियार कहां से आ रहे हैं? क्या वहाँ की पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है उसको पकड़ने की? ठीक है, तो अपने गलतियों को अभी जांच की बात भी आप कर रहे हैं और जो वहां पर इस वक्त हो रहा है उसके पीछे चीन की साजिश भी आप बता रहे हैं, इससे भी आप इनकार नहीं कर रहे क्योंकि वहां पर जस्टिन ट्रूडो के चीन के साथ में संबंध की जांच भी चल रही है, कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, इसी पर लगातार हम बने हुए। देखिए, कनाडा और भारत के बीच में तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। कब कब कनाडा से रिश्तों में खटास, हमारे तमाम मेहमान भी लगातार बने, मेरे दो साथी भी लगातार बने हुए। देखिए, कब कब कनाडा से रिश्तों में खटास आई वो आपको हम बता दें, जल्दी से आपको बताते हैं। देखिए, पहले आप ये जान लीजिए, भारत वर्सेस कनाडा, कुल जनसंख्या कितनी है? भारत में 143 करोड़ आबादी है और कनाडा की आबादी है 3 करोड़ 89 लाख। और सिख आबादी कितनी है भारत में और कनाडा में? जल्दी से आप समझिए, भारत में 2 करोड़ 8 लाख सिख आबादी है और कनाडा में आ जाइए, यहाँ पर 7,70,000 सिख आबादी है। और चुनाव के लिहाज से यह आबादी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कुल आबादी में 1.7% भारत में सिख आबादी और इसके अलावा कनाडा में आप देख लीजिए 2.1% कुल आबादी का ये हिस्सा है सिख आबादी कनाडा में। इसके अलावा देख लीजिए आप, कुल आबादी 7,70,000 है कनाडा में और इसमें जन्म से 2,36,000 सिख और स्थायी निवासी जो हैं वो 4,15,000, अस्थायी निवासी जो हैं वो 1,19,000 हैं। तो ये आबादी और इस आबादी का चुनाव में बहुत अहम रोल, इसीलिए कहा जा रहा है कि जानबूझ करके ऐसे बयान देते रहते जस्टिन ट्रूडो। आशीष कुमार मेरे साथ लगातार बने हुए। आशीष, देखिए, ये अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए ग्लोबल, अपने देश की बेइज्जती, ग्लोबल बेइज्जती करवा ली है जस्टिन ट्रूडो ने। दीपा, मुझे 22 साल के अभी तक के अपने टेलीविजन करियर में 16 साल से तो मैं विदेश मंत्रालय को कवर कर रहा हूँ। विश्वास माने, मैंने कभी इतना एक्सप्लिसिट तरीके से भारत को इतने बड़े फोरम से कनाडा को सीधे टेररिज्म को सपोर्ट करने का आरोप लगाते हुए नहीं देखा। देखिए, वेरियस फोरम्स पे अधिकारियों ने या अलग अलग जो डेलीगेशंस आते जाते रहे, उन्होंने टेररिज्म को लेकर के अपने कंसर्न्स एक्सप्रेस किए होंगे, लेकिन मैं आपको ये पढ़ के ज़रूर सुनाना चाहूँगा जो अभी अभी अरिंदम बागची ने कहा। मुझे लगता है कि इस इशू से इंडिया ने कनाडा पे हमला जो किया है, इट हैज़ गॉन फार बियॉन्ड। एमईए के स्पोक्स पर्सन ने कहा, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द रेपुटेशनल इशूज़ एंड रेपुटेशनल डैमेज, if there's any country that needs to look at this, I think it is Canada and its growing reputation as a place, as a safe haven for terrorists, for extremists and for organized crime. मुझे लगता है कि आपके एक्सपर्ट ज़्यादा बेहतर बताएंगे। खुल करके भारत का इस फोरम पे ये कह देना कि कनाडा टेररिज्म को प्रोपेगेट कर रहा है, उसे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के बराबर लाके खड़ा कर देता है। बिल्कुल ठीक है आशीष। और देखिए, ये हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से कह दिया गया कि अपनी छवि के बारे में कम से कम सोचे कनाडा, और आतंक का केंद्र बन गया, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अनीश जी लगातार बने हुए। अनीश जी, देखिए, डिप्लोमेटिक जो संबंध है भारत और कनाडा के बीच में, अब उसमें एक खाई बनती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बड़ी खाई बनती हुई दिखाई दे रही है और अननेसेसरीली बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि देखें, आपने जैसे बताया 4 करोड़ की आबादी कनाडा की है और 143 करोड़ की हिंदुस्तान की है। तो अगर वीज़ा और इस तरह की ट्रैवलिंग पे आप पाबंदी लगेगी दोनों तरफ से, तो नुकसान जो है वो ज़्यादा इंडियंस का होगा, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी तादाद में इनोसेंट हमारे जो बच्चे पढ़ने आते हैं और यहाँ से जो बिजनेस होता है, जो कारोबार होता है, ये अननेसेसरी। इसमें जस्टिन ट्रूडो ने जो मिस्टेक की है वो ये की है कि एक तो वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, लोगों को खुश करने की वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं, ये हमें सबको पता है। यहाँ की वो ईद पर मुस्लिम बरादरी के साथ जो है वो पजामा कुर्ता पहन के चले जाते हैं और इसी तरह से दिवाली पे और बैसाखी पे चले जाते हैं और वो उनका वोट बैंक है बहुत बड़ा। ये बात हमें समझने की जरूरत है। मैं इस बात को दुरुस्त मानता भी हूँ और नहीं भी मानता। इसकी वजह यह है, देखें, समझिए कि इसकी समझ लीजिएगा कि अगर ये इस कॉन्फिडेंस में लेके अपोजिशन लीडर्स को बात करते तो इसमें कोई वजन होता।
लेकिन अगर वो सिर्फ अकेले उन्होंने आके एक स्टेटमेंट, स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया और बिल्कुल कोई ठीक है एविडेंस जी, प्रोवाइड बिल्कुल नहीं ठीक कर है। रहे हैं तो सवाल आपको खड़ा खुद होता में है। आत्ममंथन की आवश्यकता है। काटजू साहब का रुख कर लेते हैं। ऐसा आतंक को लेकर भारत का जो रुख रहा है वही रुख आप देख पा रहे हैं जो पाकिस्तान के साथ में हमारा है, वही कनाडा के साथ में होता हुआ दिखा रहा है। आप आतंक को अगर नहीं छोड़ेंगे तो हम आपसे राजनीतिक संबंध छोड़ देंगे, ये साफ मैसेज है भारत की तरफ से। देखिए, भारत ने जो रोष दिखाया है, जो कनाडा इस वक्त हमारे जो सेंसिटिविटीज हैं जिसको नजरअंदाज करता है, आतंकवाद के मामले पे, खालिस्तान के मामले पे, गैंगस्टर्स के मामले पे, वो रोष बिल्कुल जायज है। लेकिन एक चीज हमें समझनी चाहिए, वो ये है कि हम कुछ भी कहें, कनाडा की इंटरनेशनल रेपुटेशन और पाकिस्तान की इंटरनेशनल रेपुटेशन में जमीन आसमान का फर्क है। जी सर। डिप्लोमेसी में जोश के साथ कभी होश नहीं खोना चाहिए, मैं इतना ही कहूंगा। बिल्कुल ठीक है। शुक्रिया आपका विवेक काटजू साहब, और जितेंद्र ओझा जी आपका भी शुक्रिया, आशीष आपका भी शुक्रिया, अभिषेक आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।